Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So I know many of you have started now seriously preparing for NABARD grade A examination and you should also, right? आपको करनी भी चाहिए because now it's a high time and approximately if we see we have only 5 to 6 months left in our hand, right? और इस time period में we have to cover a lot. And those who are not from agriculture background, I know ARD is a pain point for them and you might be thinking कि हम पहले ARD static से start करते हैं but ARD static अगर start की तो कितना time लगेगा, एक महीना अगर ARD static को ही दिया तो और subject कब पढ़ेंगे, right? So all these question can be in your mind but students see, अगर ARD आपका पेन पॉइंट है, अगर आपको ARD पहले करनी है, so today I have come up with a video that will tell you that how you can cover ARD within 20 days. So if you are starting preparing your preparation right now, so within 20 days start with ARD static, complete your ARD static. At least one complete reading should be there within 20 days, and after that when you will become little bit confident on ARD, then you can pick other subject along with your ARD and other subjects, right? So today this is the agenda of the video, that how you can cover agriculture and rural development subject within 20 days. Students, before proceeding I would like to tell you that again it is totally based on my analysis. ठीक है, it is totally based on what I have seen and based on my analysis कि एक सब्जेक्ट को कितना, एक टॉपिक को कितना टाइम मैक्सिमम लगना चाहिए for preparation. But for you, again this is not hard and fast rule. If this extend, like if you are someone जिनको 20 दिन में नहीं हो पाया, 25 days you need, it's totally fine again. But yes, you have to at least cover your ARD static if you're starting from now, at least in 20 to 25 days. ठीक है, 20 से 25 days में you should be able to cover the entire syllabus of ARD static. So in this video I'm going to talk all about that, but before starting I have a request. If you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this lecture as well as this session as well as other lecture related to NABARD, you can join us on our Telegram channel. ठीक है, चलो with that let's start. So देखो, 20 दिन में हमें ARD करनी है, right? But वो होगी कैसे? There are few prerequisites that are required from you. ठीक है, there are few exercises that you have to do before starting the ARD static syllabus or before reading the ARD static. ठीक है, what are these prerequisites? Let me quickly tell you. So first you should have the understanding of syllabus. Very important. देखो, 20 दिन में ARD करनी है, राइट? बट उससे पहले 2-3 दिन लगा लो इन सब चीजों के लिए. पहले develop the understanding of syllabus. For that what you can do, you can just go through the syllabus. You can just go through the topics that are given in syllabus. ठीक है, just develop the general understanding कि क्या पूछ रहे हैं. एग्रीकल्चर है बट एग्रीकल्चर में पूछ क्या रहे हैं. ठीक है, for that you can read the syllabus at once. Next, have chapter wise PYQ with yourself. देखो, सिलेबस पढ़ने के बाद आपने PYQs देखने हैं. PYQs आई नो चैप्टर वाइज आपको नहीं मिलेंगे, बट आपने सिलेबस देख लिया है. सिलेबस के बाद जब आप PYQs करोगे तो ट्राई टू सेग्रीगेट द PYQs बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट इज गिवन इन द सिलेबस. ठीक है, now for example you have read in syllabus that soil and water conservation is the part of syllabus and you are reading one PYQ based on the soil erosion or something like soil type. So that means that PYQ belong to that particular topic. ठीक है, तो ये आपने segregation करना है. If you have any course that has provided you the topic wise segregation, that's totally fine. Again, ये आपका काम कम हो गया है. आपको just एक बार go through करना है कि कैसे questions आए हैं PYQs में from that respective chapters. Otherwise, अगर आपके पास course नहीं है, you are preparing by yourself, at least at once PYQs को go through करें and उसको segregate करें based on the topics that are given in your syllabus. Clear? And next, what you have to do, the very important thing, that you have to develop the understanding of exam pattern. You should know what kind of agriculture is asked in the exam and what is the general pattern of questions that are seen in the exam from this particular subject. ठीक है, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी कि किस लेवल की एग्रीकल्चर आ रही है. ठीक है, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, whether they are direct questions, whether they are statement based question,
फेज 1 में ऑब्जेक्टिव जो है वो किस लेवल का है, फेज 2 का ऑब्जेक्टिव इज इट डिफिकल्ट देन फेज 1 और इट इज सेम एज फेज 1, ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट मी टेल यू, फेज 1 का ऑब्जेक्टिव इज कंपैरेटिवली टुवर्ड्स द इजी टू मॉडरेट साइड, एंड जो आपका फेज 2 का ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन द सेंस दैट वहां पे थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर होती है, बट अगेन आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। आपने सिलेबस को अगर अच्छे तरीके से कवर कर लिया then you will be in the position to do each and every objective of phase 2 as well as phase 1, ठीक है। तो आपने कम से कम 3 दिन लेने हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अगेन 3 से 4 या 5 दिन लेने हैं, एंड यू हैव टू डू दिस थिंग, ठीक है। कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लेट है बट स्टिल कोई जल्दी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ये चीज़ हो गई ना देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी बिल्ड करोगे, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा पहले तो कोर्स को लेके, जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड, और ये एक्सरसाइज करने के बाद आप पढ़ने बैठोगे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इन एनालाइजिंग कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होगा, स्मार्ट वर्क भी होगा, रादर देन जस्ट कुछ भी उठा के पढ़ने से, ठीक है। तो जस्ट टेक 3-4 days एंड डू दिस थिंग। नाउ वंस यू हैव डन दिस थिंग, सी वी विल सी द सिलेबस अगेन, ठीक है। सिलेबस में फिर से आना है, क्योंकि अब हम जो पढ़ाई करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वी विल सी द टॉपिक इन द सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली वी विल कवर ईच टॉपिक, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ ARD, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हियर इन दिस पर्टिकुलर video I am going to tell you that how you can cover the core ARD static chapters and that is up to the agriculture extension, ठीक है। यहाँ तक ही जो टॉपिक है that is core agriculture related subject or the chapters। अदरवाइज जो आपका इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है दैट इज द जनरल एनवायरमेंट थिंग, ठीक है, यू कैन कवर इट। देन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अगेन दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर जनरल एग्रीकल्चर और द करंट अफेयर, एंड अगेन द रूरल डेवलपमेंट पार्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, यू कैन कंसिडर इट इज द पार्ट ऑफ the current affair knowledge that you are going to study regarding agriculture and rural development, ठीक है। इस particular video में we will be discussing that how you can cover topics from your this section, that is general agriculture section to agriculture extension within 20 days. And I am telling you, if you have done these chapters within 20 days, if you are able to do this thing within 20 days, again you have done a lot of ARD static, you have done a chunk of ARD static, because rest is based on your general knowledge, ठीक है, general current affair that you will be reading in further preparation। but हाँ, अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तक कर लिया, ऑल दीज टॉपिक यू हैव डन वंस, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे एंड जो मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर का वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी कि आपको किस टॉपिक में कितना टाइम देना है और कैसे प्रिपेयर करना है। चलो नाउ स्टूडेंट्स सी अगेन, बिफोर टेलिंग यू नंबर ऑफ डेज यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई कैन नॉट से दैट हर कोई 20 दिन में कर लेगा, बट हाँ 20 से 25 दिन एटलीस्ट यू शुड पुश योर सेल्फ कि 25 डेज में एटलीस्ट हो जाए, ठीक है। चलो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है, सी आई व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड ऑल दीज इनटू डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है, you can say chapters also। चलो, so your first section is regarding agriculture, definition, meaning and branches of agriculture, agronomy and all। For doing this section you should only take 4 days, ठीक है। I am not saying just only, but if it is extended 4 to 5 days according to you, but yeah, probably 4 days are optimum for covering this particular section। Now students, here what you can do, you can divide whole this section that like from agriculture to classification of field crop you can do at day 1, ठीक है। What you will do, whatever source you have you will pick it, you will see what is agriculture, you will write the definition, not write but yes you can make notes if you want to make notes, if you like making notes, but what you can do else, you can read what is the definition of agriculture, develop the general understanding, then move ahead to branches of agriculture, then move ahead to what are the different branches and what we study under all these branches, examples, ठीक है। then what you will do, you will move ahead to the general agronomy part, what is agronomy, what all we study in agronomy, different classification of field crop, and accordingly you have to you can make your short notes, ठीक है। otherwise you can just highlight the thing that you have, the resource that you have, either it can be a book or it can be any notes from any course, ठीक है। so you have to highlight those things, and then what you'll do in the second day, you can divide your second day
for factors affecting crop production, agroclimatic zone, cropping system definition and types of cropping system. ठीक है, this part you can do in your day 2. Next, problems in dryland agriculture, seed production, seed processing, seed village, that you can do in your day 3. And after metrology to other topics, you can give it to your day 4. So you have to divide this particular section into 4 days. Okay, and accordingly you have to cover each thing, whatever you have सेट द टारगेट, आपको उस अकॉर्डिंग कवर करना है. सेम फिर आपका जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन चैप्टर है, यहाँ पे आपने एटलीस्ट 4 डेज देना है. देखो स्टूडेंट्स, द टॉपिक्स और द चैप्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है फॉर यू टू कवर, बिकॉज अगेन इफ यू विल सी द PYQs, ठीक है, जो आपका पहली एक्सरसाइज है टू एनालाइज द PYQ, यू विल सी दैट इन चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करने हैं, तो इसलिए मैंने इन चैप्टर्स को और इन सेक्शंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है फॉर यू टू कवर. नाउ अब ये जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला चैप्टर है, हियर यू विल सी मेजर सॉइल टाइप. नाउ स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स नहीं पढ़नी है. फर्स्ट यू विल सी व्हाट इज सॉइल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल ऑर्डर्स भी इसमें एक टॉपिक है, ठीक है, दैट यू हैव टू cover soil orders because that is again very important, and then you will cover major soil types. ठीक है, according to your suitability जितना भी cover हो पा रहा है soil से related, किसी book को उठाओ, बुक से जो सॉइल वाला सेक्शन है, आई वुड से अगर आप अरुण कात्यायन उठा रहे हो तो अरुण कात्यायन में सॉइल से रिलेटेड जितना भी कुछ दिया है, जनरल सॉइल से रिलेटेड, उसको कवर कर लो. ठीक है, देन जिसमें स्पेशली मेजर सॉइल टाइप्स एंड सॉइल ऑर्डर्स वगैरह कवर हो. नेक्स्ट इज सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी भी अगेन एक सेपरेट चैप्टर है अरुण कात्यायन में और अदर बुक्स में, तो वहाँ पे भी आपने क्या करना है, सॉइल फर्टिलिटी देखना है. सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये देखना है. देन उसके बाद आपने क्या करना है, फर्टिलाइजर्स कवर करने हैं. कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है, पोटेसिक फर्टिलाइजर है, अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू कवर. देन सॉइल इरोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेथड, वाटर कंजर्वेशन मेथड, एंड अगेन वाटरशेड मैनेजमेंट. क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, जो टेक्निक्स है यूज की जाती है, दैट यू हैव टू कवर. ठीक है, आपको यहाँ पे 4 दिन लगाने हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार इसको देख लिया और खत्म. जो भी आपके पास सोर्स है उसको अच्छे से देखना है. PYQs आपने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है. इसके अलावा PYQs में जो भी आया है उस सोर्स से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं. ठीक है, इसीलिए 4 दिन दिए हैं. ऐसे नहीं है कि इसमें तो सिर्फ 4 टॉपिक थे, उसके लिए 4 दिन क्यों दे दिए. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज इंपॉर्टेंट. चलो, नेक्स्ट इज वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन मैनेजमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू जस्ट हैव टू गिव 1 डे. ठीक है, आपने PYQs देखने हैं. अगेन PYQs में यू विल सी जनरली द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द कमांड एरिया और द इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका. ठीक है, उससे रिलेटेड अगेन आपकी जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है, लाइक इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, सीपेज, ठीक है, ये सब चीज़ आपने कवर करनी है. तो उसके लिए यू कैन जस्ट गिव 1 डे. आपने कोई भी अपना सोर्स उठाना है, ये सारे टॉपिक्स देखने हैं, उसको क्विकली उसी वे में कवर करना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ से. ठीक है, उसको उसी वे में कवर करना है. फिर नेक्स्ट वी हैव इज फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. अगेन ये भी आपने 1 दिन देना है मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ पे देखो, आप 1 दिन में ये कवर करना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है. मे बी लाइक यहाँ पे आप ईच डे ओनली यू आर गिविंग 4 to 5 hours, बट यहाँ पे यू कैन गिव 5 to 8 hours, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 दिन में कवर करना ही करना है. यू डोंट हैव टू गिव मोर टाइम टू दिस, मोर डेज टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से. ठीक है, उसी बेसिस पे, जिस बेसिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होंगे PYQs, उसी बेसिस पे आपने उसको प्रायोरिटी देनी है. ठीक है, और ट्राई करो, अगर 1 दिन में हो रहा है तो कंप्लीट कर लो, अदरवाइज 1.5 days यू कैन गिव टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट वी हैव इज प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसीलिए इसको अगर 3 दिन दिए गए हैं, तो 3 दिन में आपने जितने भी PYQs तो आपके पास है ही, राइट, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने टॉपिक्स सिलेबस में दिए हैं वो सारे आपने कवर करने हैं अकॉर्डिंगली. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एनिमल हस्बेंड्री. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन आपके पास जब PYQs होंगे चैप्टर वाइज, यू विल सी इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है. ठीक है, तो वो भी आपने 4 दिन में कवर करने हैं. ठीक है, अब इसमें जो मैं बता देती हूँ, ब्रीड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपने क्या करना है, 4 दिन में या तो नोट्स बनाने हैं, या तो हाईलाइट करना है, या जस्ट जनरल रीडिंग करनी है, या जस्ट आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है कौन कौन सी ब्रीड है. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू जस्ट ट्राई टू लर्न ऑल द ब्रीड्स. यू कैन नॉट मेमोराइज इट एट वंस. ठीक है, इस 4 दिन में आपने
रीड भी देख ली, पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, इतना रिवाइज भी कर लिया कि एग्जाम तक भूले ना, इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं देना है, जस्ट आपने पढ़ना है। और एक जो रीडिंग होती है जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, लाइक कॉलेज में क्या होता है, हम दूसरे दिन एग्जाम होता है, पहले दिन सारा पढ़ते हैं, उस लेवल की पढ़ाई करनी है कि आपको एटलीस्ट दूसरे दिन तक वो याद रहे, क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप एक बार इसको पूरा कवर कर लोगे देन यू कैन गो फॉर योर रिविजन सेशन। हाँ, अगर आप डेली रिवाइज कर सकते हो कि आपने पिछले दिन क्या पढ़ा था, दैट इज अगेन वेरी ग्रेट थिंग टू डू। 15 मिनट दे दो कि मैंने कल क्या पढ़ा था, टॉपिक देख लो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि हाँ ये पढ़ा था। ठीक है, चलो, एंड विद इन 10 डेज अगर आप क्या कर सकते हो, दूसरा रिविजन कर सकते हो कि इस 10 दिनों में मैंने क्या पढ़ा, दैट इज अगेन वेरी ग्रेट थिंग टू डू। अगर आपको चाहे 2 दिन एक्सटेंड करना पड़े, 20+2 डेज हो जाए, कोई बात नहीं, बट अगर आप रिविजन करना आपको सही लगता है या फिर आप चाहते हो रिवाइज करें और ये चीज रिटेन रहे, देन अगेन यू कैन इंक्लूड डेली एंड 10 डे रिविजन विद दिस प्रिपरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव फिशरीज। अगेन इसको भी आपने मैक्सिमम 1 दिन देना है, 1 दिन में सारे टॉपिक्स जितने भी दिए हैं यहाँ पे उसको जनरली ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आर लेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगेन यहाँ पे मैंने 1 ही दिन दिया है बिकॉज हमें कवर करना था सब कुछ। ठीक है, बट फॉरेस्ट्री अगर आप देखोगे ना, इट इज नॉट ऑफ जस्ट कि इसमें कुछ कंसेप्चुअल आपको नॉलेज चाहिए, ये जनरल नॉलेज है, इट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल चैप्टर आई वुड से। ठीक है, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में ही आता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आता है, ऑब्जेक्टिव में कम आते हैं बट कम आता है। ठीक है, तो ये भी थ्योरेटिकल ही है, तो आपने इसकी एक रीडिंग कर ली, दैट इज सफिशिएंट, और 1 दिन में इट इज डूएबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी 1 दिन दे दो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव 0.5 days टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड यू कैन एक्सटेंड योर 1.5 टू ऑफ फॉरेस्ट्री, ऐसे भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। ठीक है, now students, I hope you have got the clarity that how you can cover the entire ERD subject in 20 days. but अब देखो, ये 20 days का जो आप मोटिव लेके चल रहे हो इस वीडियो के बाद कि हाँ चलो ठीक है 20 दिन में करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन किया फिर तीसरे दिन यू आर गायब। ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ट्राई टू स्टिक टू द प्लान, ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ, ट्राई टू हैव दैट क्लैरिटी इन माइंड कि यार 20 दिन में खत्म करना है, बहुत टफ चैप्टर है, एटलीस्ट 20 दिन में मुझे इसको निपटाना है, उसके बाद मैं अपने जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है उसको पढ़ सकूं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, और 20 से 25 दिन यार 20 से 25 दिन दे दो, हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ कंडीशन क्या है, सिलेबस देख लेना है, चैप्टर वाइज PYQs देख लेना है, और एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आपके पास एक टारगेट होगा कि मुझे कल ये करना है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाती है चीज़। ठीक है, वो बोरिंग नहीं होगा। सो दैट्स वाई आई हैव ट्राइड टू पुट थिंग लाइक वाइज, एंड आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे करना है, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट आफ्टर वाइज। ठीक है, चलो, नाउ वी हैव 2 कोर्सेज, गोल्ड पैक एंड सिल्वर पैक। इन गोल्ड पैक वी प्रोवाइड द कंटेंट ऑफ phase 1, phase 2 and interview. In silver pack you get the content of phase 2 and interview preparation, but along with phase 2 you get ESI, ARD and GA of phase 1 as well in the silver pack. Chalo, that's all students, I hope you have enjoyed. Thank you so much.